Good morning, students. So, today we are going to discuss the exercise of chapter 11, and we are starting that with the fill in the blanks. So, the first is the dash of the human eye determines the color of a person's eye. किसी भी पर्सन की आई कौन से कलर की है वो किससे पता चल जाता है, किसके कलर से? दैट इज आइरिस, IRIS, आइरिस. ठीक है. देन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड, जिस पे लाइट सेंस होती है, जिस पे इमेज बनती है, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं ह्यूमन आई में? दैट इज दैट इज रेटिना, RETINA, रेटिना. Then the cone-shaped cells on the retina respond to. ध्यान रहे इस चीज को, ध्यान से याद भी रखना है that the cone-shaped C for cone and C for color. ठीक है. So cone-shaped जो हो गया, cone-shaped on the retina respond to the bright light and they are responsible for colors. Then the defect of vision in which eyeball becomes smaller, eyeball छोटी हो जाती है अपने normal size से, वो कौन सा होता है? Yes, hypermetropia. Hypermetropia. Then a dashed lens is used to correct myopia. Myopia कौन से लेंस से ठीक होता है? That is convex. और hypermetropia किससे होता है? That is concave. Then tick the correct option. The change in focal length of an eye lens to focus the image of the objects at varying distance is done by wait. I am there on the tick the correct answer. Firstly, true and false are there. So firstly we are going to do true or false. Then iris is the muscular assembly that controls the size of the pupil, and it is very true. It is very true. Then the eye lens forms a virtual erect and diminished image of an object on retina. It is false na, because it forms the real and inverted image. Diminished होती है but it is real and inverted image. Then third is the retina of the human eye has a large number of cone-shaped and rod-shaped cells, and rod-shaped respond to dim light. Yes, it is very true. Rod-shaped dim light को respond करता है, और cone-shaped colors दिखते हैं वो भी किसमें? Bright light में. Then cinematography makes use of persistence of vision of the human eye. अगर आपको याद हो persistence of vision क्या होता है कि हम कुछ भी देखते हैं तो हमारी रेटिना पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारी आई में रेटिना पे 1/16 ऑफ सेकेंड के तक रहती है, जिसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं. दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. तो सिनेमेटोग्राफी में भी यही किया गया. 16 फ्रेम्स या 16 से ज़्यादा फ्रेम्स डाले गए एक सेकेंड में, जिससे हमें वो इमेज मूविंग दिखाई देती है. देन फिफ्थ इज फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द रेंज ऑफ विजन इज फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी. येस, वेरी ट्रू. देन मायोपिया इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया. कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाता है तब मायोपिया होता है. येस, इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू. Now we are coming to check the correct option. Now the change in focal length of an eye lens. Eye lens की focal length जो होती है वो change होती है to focus the image of the objects at varying distance. और ये कौन करता है? focal length को adjust कौन कर रहा है? pupil तो बड़ा छोटा हो रहा है, iris pupil को बड़ा छोटा कर रही है, रेटिना पे तो इमेज बनती है, और ciliary muscles क्या करती हैं? आई लेंस को फोकस करती हैं. The impression of the image formed on the retina of the human eye remains there for about human eye में impression कितनी देर तक रहता है? That is up to 1/16 of second. Then the human eye can focus objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens
दिस एबिलिटी ऑफ आई इज नोन एज, जो मतलब हम पास की चीज देखें तो भी हमें क्लियरली दिख रही है, दूर की चीज देखें तो भी क्लियरली दिख रही है. देन दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. So this ability of eye is known as power of accommodation. Then we are coming on fourth. The nearsighted person will face difficulty while reading. अब जो नियर साइटेड पर्सन है उसको कौन सी चीज पढ़ने में मुश्किल होगी? बुक हेल्ड इन हैंड्स. नियर साइटेड है तो पास की तो चीजें अच्छे से दिख रही है ना, टेक्स्ट मैसेज भी दिख रहा है, ईमेल, कंप्यूटर स्क्रीन वो भी पास में है. बट एक स्ट्रीट साइन बोर्ड जो स्ट्रीट के बाहर है, दूर है काफी, वो उसको पढ़ने में मुश्किल होगी. ठीक है, बिकॉज ही इज अ नियर साइटेड पर्सन, मीन्स पास की नजर उसकी ठीक है, पास का उसको दिखाई दे रहा है. देन फिफ्थ इज द डिफेक्ट ऑफ द ह्यूमन आई इन विच द आई लेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग इन अ ब्लर्ड विजन. जब लेंस के ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है और वो क्लाउडी हो जाता है तो उससे नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस का कोई लेना देना नहीं है. दैट इज जस्ट द कैटरैक्ट. कैटरैक्ट में आई लेंस के ऊपर मेम्ब्रेन आ जाती है जिससे ब्लर विजन हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो आई लेंस फोकस ही नहीं कर पाता, उसके ऊपर एक झिल्ली या मेम्ब्रेन आ जाती है. Then the sixth one is the braille system for visually challenged person is visually challenged person के लिए braille system क्या है? visual aid देखने की aid है, tactual aid है टच करने की aid है, auditory aid सुनने वाली aid है, या electronic aid इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली aid है. So it is touch, it is related to touch, sense of touch, so it is a tactual aid. Fine. Then we are going to discuss some of the questions of part D and part E also. So name the part of the human eye which acts as a protective layer for the eye. Eye के लिए protective layer कौन बनता है? Yes, everyone knows about this. That is this cornea. So the pupil appears black. Why? Because pupil कुछ है ही नहीं. Pupil is an empty space. It is a hole. तो from this hole no light is reflected from this. खाली जगह है, किसी से टकराएगी नहीं लाइट, तो रिफ्लेक्ट कैसे होगी? जब इससे कोई चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही, then it appears black. Fine. Then differentiate between rod shaped and cone shaped. तो रोड शेप सेल्स तो आपको पता है दैट दे गेट एक्टिवेटेड इन डिम लाइट, और कॉन शेप्ड सेल एक्टिवेटेड इन ब्राइट लाइट. सो रोड शेप डिम लाइट विजन के लिए होते हैं और कॉन शेप्ड आर देयर टू सी द कलर्स. द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज infinity. Then come to the another difference, that is between myopia and hypermetropia. तो ये आपको आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको उसके 3-4 पॉइंट्स याद कर सकते हो. जैसे कि फर्स्टली मायोपिया में आप बताइए कि क्या देखने में मुश्किल होती है. सो इन मायोपिया द पेशेंट इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, and in hypermetropia the person is not able to see nearby objects clearly. Fine. So आई बॉल जो होती है elongate हो जाती है मायोपिया में, आई बॉल छोटी हो जाती है हाइपरमेट्रोपिया में, आई बॉल गेट शॉर्टेंड. देन अगर आई बॉल लंबी हो जाती है मायोपिया में तो फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल अगर छोटी हो जाएगी तो उसका स्ट्रेट हो जाएगा ना लेंस, जिस वजह से उसका फोकल लेंथ भी फोकस बहुत बढ़ जाएगा, दूर चला जाएगा तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी. देन हाउ द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, ये भी बता दीजिए. दैट मायोपिया इज करेक्टेड बाय कनकेव लेंस एंड देन हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस. Then we are coming on next difference, tactual aid and auditory aid. Tactual aid work on the sense of touch.
टच रिसेप्टर स्किन पे रिलाई करते हैं, जबकि ऑडिटरी एड्स रिलाई ऑन द एबिलिटी ऑफ हियरिंग, कितना अच्छे से सुन सकते हो आप। फिर एग्जाम्पल देंगे तो टच के लिए ब्रेल सिस्टम सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और ऑडिटरी एड्स के लिए ऑडियो कैसेट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Then you are going to define the terms, that is blind spot on the retina. Blind spot बेटा वो spot होता है, it is the junction of optic nerve and retina. So here no photosensitive या photoreceptor cell is present, so no image is formed at this point, at this spot. That's why it is also called the blind spot. Then persistence of vision of human eye. ह्यूमन आई के परसिस्टेंस ऑफ विजन आपको बताना है दैट इमेज लास्ट ऑन द रेटिना फॉर 1/16 सेकेंड, और इसी को हम परसिस्टेंस बोलते हैं। मूवीज और एनिमेशन वर्क जो होता है दे इट ओनली वर्क्स ऑन दिस कंसेप्ट। देन यू आर गोइंग टू गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म्स, that is power of accommodation of the human eye. Power of accommodation की the ability of human eye to clearly focus on near as well as distant object, that is the power of accommodation. Then the least distance of distinct vision वो होता है कि minimum distance जिससे एक normal eye दूर तक देख सकती है, जहाँ तक देख सकती है, that is the least distance of distinct vision. Then range of vision होता है range of vision least distance और far point और near point के बीच का distance, that is the range of vision, कि कहाँ तक हम easily देख पाते हैं। Then we are coming on what happens to the image distance in the eye when the distance of object from the eye increases. अगर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा आई से तो क्या होगा, तो भी एज सच कुछ नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। द इमेज जो बनेगी वो हमेशा सेम बनेगी, दैट विल बी ऑन रेटिना, और नॉर्मल विजन के साथ दैट विल बी रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल। Now the next, when Sahil tried to read a book by keeping it at a distance of 25 centimeters, the text printed appeared to be blurred. Then is the image of the text getting formed before the retina या beyond? सबसे पहले आप ये बताइए कि सोचो कि इसमें दिक्कत क्या है। अगर 25 सेंटीमीटर पे पड़ी है मतलब पास पड़ी है, आई के नियर पॉइंट पे है, और वो उसको ब्लर दिखाई दे रही है। अब अगर ब्लर दिखाई दे रही है दैट मीन्स पास की नज़र नहीं हम देख पाते, दैट मीन्स इट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में आपको ये याद करना पड़ेगा कि रेटिना के आगे बनती है या पीछे बनती है इमेज, सो इट इज़ देयर बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनती है जाके। देन सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा दैट व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जो लीस्ट डिस्टेंस है, जो पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस का साहिल की आइज में, वो बढ़ गया है, मतलब नियर बाय का 25 सेंटीमीटर नहीं है, नाउ इट इज फार अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, सो दिस इज द कंक्लूजन। देन द 9th क्वेश्चन, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई है, कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर्स डिस्टिंक्टिवली। Then what can be said about the likely size of the eyeball? eyeball के साइज के बारे में आप क्या कहेंगे? And state the nature of corrective lens. लेंस किससे ठीक होगा ये? अब ये मायोपिक आई है, दैट मीन्स आई बॉल उसकी लंबी हो गई है, elongate हो गई है, द आई बॉल हैज बिकम elongated. Now he is going to use the concave lens for correcting his vision. Fine. आई होप दैट यू आर क्लियर विद दिस कि उसको कनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा और आई बॉल जो है वो बड़ी हो जाएगी. देन इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू ड्रॉ आई and you have to write the functions also. First is cornea. What is the function of cornea? Diagram आप खुद बनाइएगा. I'm just telling you the function. So cornea का function है that it protects the eye. Then iris adjusts the size of the pupil.
Then pupil allows the light to enter the eye, and eye lens used to focus the ray of light. Then ciliary muscles control the variations in focal length. आई लेंस को जब दूर की पास की जगह देखनी होती है तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, उस फोकल लेंथ को चेंज करता है सिलरी मसल्स. देन रेटिना तो स्क्रीन है. देयर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द रेटिना बिकॉज ऑफ फोटो रिसेप्टर्स. देन ऑप्टिक नर्व कैरी सिग्नल्स फ्रॉम आई टू द ब्रेन. तभी हमें पता चलता है कि जो हमारे रेटिना पे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है असल में वो ऐसी नहीं है. उसको सीधा करके हमारा ब्रेन बताता है कि दैट दिस इज द इमेज. फाइन. देन एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट्स एज दे आर. बट सिंपल दैट देखो लाइट रेज आई ऑब्जेक्ट से एंटर आर आईज पास टू द लेंस. लेंस से गई, लेंस ने फोकस किया रेटिना पे रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनी. फिर फोटो रिसेप्टर्स और ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, वो सिग्नल्स को लेकर ब्रेन तक भेजेगी. ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करेगा दैट कि जो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो इस तरीके का है. ठीक है. देन स्टेट एनी 5 प्रिकॉशंस दैट यू कैन राइट वेरी इजीली. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस. देन एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन. ये भी हमने कल किया है जस्ट. ठीक है. ऑप्टिकल एड्स कैसे हेल्प करते हैं, बिकॉज ऑप्टिकल एड्स से हम लेंसेज या टेलीस्कोपिक एड्स या कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं जिससे उनको दूर की चीज़ें इजीली दिखने लगती हैं. और नॉन ऑप्टिकल एड्स में दूसरी सेंस ऑर्गन्स यूज़ होते हैं जैसे स्किन या ईयर्स. तो स्किन के लिए जब टच एड यूज़ होती है दैट इज़ ब्रेल. और जो ऑडिटरी एड्स सुनने वाली एड्स होती हैं उनके लिए ऑडियो कैसेट्स हो गई, सीडीज हो गई, सॉफ्टवेयर्स हो गए. So there are many auditory aids also there. Then in question number 5 we are having what is Braille system. Again this is the system of raised dots on paper and it is a tactual aid, a non-optical aid which we can say. So in which a visually impaired person क्या करेगा, can read or write by touching it. और ये 63 कैरेक्टर्स होते हैं इसमें और एम्बोज्ड होते हैं एक पेपर के ऊपर. एम्बोजिंग से बनता है. सो विद दिस द बुक्स कुड बी मेड ऑन दिस सिस्टम ऑल्सो. this is the Braille system. So this was all about the exercise of the chapter number 11. And now you have to learn of this. I'll be sending the document of this chapter also. Learn all these questions and the internals also, and draw the diagrams and tables in the practical notebook. Thank you very much.